Hi, welcome to this unique haircare initiative by IPCA. I'm Mona Sharma and it's my pleasure to be your host today. This unique initiative seeks to provide expert advice for various issues connected with hair care. Our hair is a crowning glory and it makes a world of difference to our appearance. However, our hair also requires special care and attention. Earlier, it used to be a sign of middle age problem when you used to lose hair or have thinning of hair or bald patchy hair. However, with increasing pollution and the increase of stress in our daily work life, we are now seeing hair problems occurring even at a younger age. It is not uncommon now to see 25 to 35 years old people complaining about hair problems. Most of these problems, if identified early, can be managed well and much of the hair loss can be avoided. Today we have with us Dr. Anshul Varman is a well-known dermatologist and has been practicing medicine for over many years now. She's MBBS MD in dermatology. She specializes in dermatology, cosmetology, and trichology. She currently practicing as consultant dermatology and cosmetology at Apollo Hospital International Limited and also at Iconic 1010 Multi Speciality Hospital, Ahmedabad, Gujarat, India. Dr. Anshul Verma had dedicated her career to diagnosing and treating a wide range of hair and skin conditions while providing a specialized healthcare services to her patients. She takes time to listen to her patient concern and work closely with them to develop a treatment plan that meets their individual requirement. Dr. Anshul is aware of the need for the patient awareness and education about hair care and spend a lot of time in giving talks at various platforms across the country. Thank you, Dr. Anshul, for sparing your valuable time to answer a few questions on hair care for us today. Welcome to the show. Thank you, Mona. Thank you for letting me here. I'm Dr. Anshul Varman, Apollo Hospitals, Ahmedabad. Yeah, and you also work at the Iconic Tent and Multi Speciality Hospital, I think so. I work at Krish Specialty Clinic, Ahmedabad. Yes. सो डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. सो हम आज बात करने वाले हेयर केयर इन करंट सिनेरियो. तो जब भी हम हेयर केयर इन करंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो कॉमन प्रॉब्लम है हम सबके बीच में है हेयर लॉस. तो डॉक्टर क्या आज आप हमें बता सकते हैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस द्वारा कि हेयर लॉस कितना हद तक नॉर्मल होता है और हमें कब इसकी चिंता करनी चाहिए और कि लाइक अलार्म साइन कि हमें अब डॉक्टर को चले जाना चाहिए. बिल्कुल. हेयर लॉस यानी बालों का झड़ना, हेयर फॉल भी हो सकता है, हेयर लॉस भी हो सकता है. दोनों में थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है जो एक एक्सपर्ट समझ सकते हैं. बट जनरली जो सामान्य पॉपुलेशन में या सामान्य व्यक्ति में हम कहें तो हर एक के लिए हेयर फॉल चिंताजनक अलग अलग टाइम पे हो सकता है. किसी के लिए 20 से 25 बाल झड़ना भी नॉर्मल होगा, किसी के लिए 50 से 100 बाल झड़ना भी नॉर्मल होगा. तो अगर आपका रेगुलर जो एक हेयर फॉल पैटर्न है या हेयर ग्रोथ पैटर्न है वो 2 से 3 सप्ताह तक बदल जाए या ज्यादा बाल गिरने लगे या टूटने लगे या हल्कापन महसूस होने लगे या बाल ड्राई होने लगे तो 2 से 3 हफ्ते का विंडो पीरियड हम देते हैं कि अगर उसके बियॉन्ड भी उससे ज्यादा भी अगर आपकी कुछ तकलीफें सिम्टम्स नजर आ रहे हैं तो फिर वो चिंताजनक हो सकता है. उसके लिए आपको कुछ ना कुछ उपाय आगे करने पड़ेंगे, उसको सपोर्ट देना पड़ेगा. या तो शुरुआत में जैसे जनरली पेशेंट्स घरेलू तौर पे देते हैं, नहीं तो फिर एक्सपर्ट एडवाइस हमेशा करते हैं. ओके मतलब अगर 3 हफ्तों से ज़्यादा अगर बाल गिर रहे हैं तो इट्स बेटर कि हम डॉक्टर के पास जाएं और अपने हेयर लॉस या हेयर प्रॉब्लम हो क्या रहा है उसके बारे में जानने की कोशिश करें और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट लें. तो डॉक्टर लाइक आज आप लाइक कैन यू प्लीज एनलाइटन अस लाइक कि जनरल समस्या क्या हो सकती है हेयर लॉस को या बालों के झड़ने के लिए, क्या कॉजेज हो सकते हैं, क्यों होता है ये? कारण हेयर लॉस बालों के झड़ने के लिए कई सारे होते हैं. उसको हम 2-3 प्रकार में डिवाइड कर देते हैं. एक होता है डिफ्यूज्ड या जनरलाइज्ड हेयर फॉल, यानी कि आपके पूरे ही स्कैल्प में से बाल गिर रहे हैं या फिर हल्के पड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दूसरा होता है लोकलाइज्ड. लोकलाइज्ड यानी कि आपके कुछ कुछ एरियाज में से ही वो पैची हेयर गायब हो रहे हैं यानी गैप पड़ रहे हैं. सो वो कॉमनली एलोपेशिया एरियाटा का डायग्नोसिस कहलाता है. फिर कुछ होते हैं फेजिक या साइक्लिकल. कॉमनली ये सीजनल होता है. जैसे मॉनसून सीजन हमारे इंडियंस में हेयर ग्रोथ साइकिल में फॉलिंग पीरियड होता है, यानी जनरली नॉर्मल के हिसाब से आपके मॉनसून में थोड़े से बाल ज्यादा गिर सकते हैं. सो दैट इज अ फेजिक और अ साइक्लिकल हेयर फॉल.
जो कुछ समय रहेगा, फिर वो अपने आप नॉर्मल हो जाना चाहिए। पर अगर वो नहीं हो रहा है नॉर्मल, तो फिर आपको किसी ना किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की या हेयर एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। फिर आता है न्यूट्रिशन कॉजेज, यानी कि अगर हमारी डाइट सही नहीं है, हम प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। आजकल ओवर कुक फूड और पैकेज्ड फूड, उससे हमारे जो नॉर्मल विटामिन होते हैं, जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे काफी हद तक डैमेज हो जाते हैं। तो वो खाने से हमें बैलेंस्ड या प्रोपोर्शनेट मिनरल्स और सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। तो न्यूट्रिशन बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल हेयर फॉल में, इसीलिए हम लोगों में भी हेयर फॉल देख रहे हैं। 8 से 10 साल के बच्चों में भी हम हेयर फॉल देख रहे हैं, सामने 40 से 50 साल में भी हेयर फॉल और थिनिंग देख रहे हैं। तो द होल एज ग्रुप हैज वाइडेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ सालों में बहुत ज्यादा हेयर पैटर्न चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर आता है हार्मोनल, यानी कि अगर हेयर फॉल का किसी ना किसी चेंजेस के कारण है, फीमेल्स में मेनोपॉज के दौरान या डिलीवरी के कुछ महीनों के बाद पाया जाता है। मेल्स में जो है वो हार्मोनल पैटर्न वो हम सब जानते हैं, धीरे धीरे जो हेयर लाइन रिसीड होती है। जैसे कि आप अगर देखना चाहें तो इसमें तरह तरह के सारे ग्रेडिंग कहलाते हैं, यानी शुरुआत में सिर्फ हेयर लाइन पीछे जाएगी, साइड से जाएगी, धीरे धीरे ये गैप आएगा, धीरे धीरे पीछे जाएगा, तो वो हार्मोनल है। यानी आपका फादर का या आपके साइड का जो पैटर्न रहा है उस पर डिपेंड करेगा, आपके मेल हार्मोनल चेंजेस पे। बालों की जड़ों पे जो टेस्टोस्टेरोन आपका हार्मोन बदलाव देता है, वो सारे हेयर फॉल में सिम्टम्स हम देख सकते हैं। फिर आता है लाइफस्टाइल में भी। तो मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत मुख्य कारण है हेयर लॉस का। या हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि आजकल तो हमारी सबकी लाइफस्टाइल ऐसे ही है, वर्क फ्रॉम होम, लेट आवर्स तक सोना, लाइक लेट आवर्स तक काम करना, फिर लेट सोना और फिर जस्ट कम सोना। तो डॉक्टर लाइक प्लीज आप बता सकते हैं कि क्या है लाइफस्टाइल का भी कोई रोल है हेयर लॉस के बढ़ावे में? बिल्कुल है, लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका रूटीन फिजिकल हेल्थ कैसा है, आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका स्लीप पैटर्न कैसा है, कितना स्ट्रेस है आपके लाइफ में। तो जैसे हमने देखा है कि स्ट्रेस अगर बढ़ जाता है तो फिर उसके अगले 2-3 महीने तक हेयर फॉल ज्यादा देखने को मिलता है। तो कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, या तो फैमिली में कोई मेजर इलनेस है, या आपके वर्कलोड इतना है, या आपके शिफ्ट पैटर्न्स हैं, तो नाइट शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, तो वो सारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, वो सभी इम्पोर्टेंट हो। तो एक रेगुलर लाइफस्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज, जैसे स्मोकिंग से भी हेयर रूट्स डैमेज होते हैं, या कई बार जो हम पेशेंट्स में हेयर ग्रोथ की ट्रीटमेंट्स देते हैं, उनमें अगर स्मोकिंग है तो हमारा ट्रीटमेंट रिजल्ट भी कम हो जाता है। जो नॉर्मली मिलेगा उससे काफी 20 से 30% हमें कम मिलता है हेयर जो इम्प्रूवमेंट चाहिए या ग्रोथ चाहिए वो। तो लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंटली ध्यान में रखनी चाहिए, क्या हम खा रहे हैं, कैसा हमारा रेगुलर लाइफस्टाइल है। तो एक्सरसाइज से जो बालों में या इवन स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, उससे भी बेनिफिट मिलता है। प्लस हम तेज धूप में जा रहे हैं तो जो बाल डैमेज होते हैं उसका प्रिवेंशन हमें प्लान करना पड़ता है। हमारी जो रूटीन दिनचर्या में ही है कि हम धूप में जाना पड़ेगा, तो फिर वो सारा चीजें ध्यान में रखने से हम अपने बालों को काफी हद तक शाइनिंग और हेल्दी रख सकते हैं। ओके डॉक्टर। तो डॉक्टर लाइक अब हमें ये पता चल गया कि हेयर लॉस क्या होता है, हेयर लॉस और हेयर फॉल के बीच में भी डिफरेंस होता है, जनरल समस्या क्या होती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन हम कॉमन पीपल को भी नहीं पता, लेकिन मुझे भी नहीं पता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है। कि अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है तो आजकल लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बिना मतलब घर से बाहर निकलने का सोचते नहीं है, या अपने आप को मतलब कॉन्फिडेंस से देखते नहीं है। तो क्या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे हेयर लॉस को ठीक करने के लिए? बहुत सारे आजकल एडवांस्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो कौन सा एज ग्रुप आ रहा है, पेशेंट कितनी एज का है, उस पर सबसे पहले हमारा ट्रीटमेंट अप्रोच डिसाइड होगा। हम सीधे 18 साल का अगर कॉलेज गोइंग पर्सन मेरे पास आ रहा है थोड़ा हेयर थिनिंग के लिए और हेयर फॉल के लिए, तो हम उसमें एडवांस ट्रीटमेंट्स तुरंत नहीं चालू करते। तो एज बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरा कि प्राइमरी रीजन आपका हेयर फॉल का मुख्य कारण हमने जब इवेल्युएट किया ब्लड टेस्ट से, एग्जामिनेशन से, तो एग्जामिनेशन के टाइम पे हम इस तरह के ट्राइकोस्कोप्स, यानी जो आपके स्कैल्प में हम जांच करते हैं कि स्कैल्प कितना हेल्दी है, बालों का
प्रपोर्शन कैसा है, यानी कौन से बाल हेयर ग्रोथ साइकिल फेज में है, कौन से फॉलिंग फेज में है, वो सारा एक एनालिसिस होता है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि आपको सिर्फ एक ग्रोथ बैलेंसिंग का ट्रीटमेंट चाहिए, हार्मोनल सपोर्ट का ट्रीटमेंट चाहिए, या न्यूट्रिशनल सपोर्ट का ट्रीटमेंट चाहिए। तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए खाने के टैबलेट्स आएंगे, कुछ सीरम्स आएंगे, तो वो सब आपको लगाने से, खाने से, मेडिकली जो सपोर्ट देते हैं हम, उससे काफ़ी हद तक 2 से 3 महीने में रिजल्ट दिखना शुरू होता है। बाल में कोई भी ट्रीटमेंट आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता, तो कुछ पेशेंस रखना है आपके डॉक्टर के साथ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करनी है, जो डिस्कस करनी है, ताकि हम आपके रूटीन के हिसाब से, क्योंकि ये इतना लंबा चलने वाला ट्रीटमेंट है, तो आपके रूटीन के हिसाब से जब हम इंडिविजुअलाइज करेंगे तो आप उसको ज़्यादा हद तक फॉलो कर पाएंगे, उसके बेस्ट रिजल्ट्स दिख पाएंगे। ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर, आप जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात कर ही रहे हैं, तो डॉक्टर आप हमें प्लीज़ ये भी बता सकते हैं कि प्रोसीजर कौन-कौन से हैं जो हम हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए करा सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में बता सकते हैं प्लीज़? बिल्कुल, आजकल पेशेंट आगे से आकर बोलते हैं कि अच्छा डॉक्टर आप पीआरपी करते हैं, आप मैं घर पे वो डर्मा रोलर यूज़ करता हूँ। सो बहुत सारे ऐसे प्रोसीजरल सपोर्ट है जो हम खाने के टैबलेट्स, लगाने के सीरम्स, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर मास्क, यानी जो आपका रूटीन हेयर केयर है, उसके साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलता है और काफ़ी प्रॉपर जो बेस्ट हम ऑप्टिमम हेयर रूट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, वो प्रोसेस हम कर सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आज थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूंगी, क्योंकि जो घर पे लोग ये इस तरह के नीडलिंग डिवाइसेस जो डर्मा रोलर कहते हैं वो यूज करते हैं, जो रोल करते हैं, तो उससे जो नए बाल आ रहे होते हैं वो काफी वीक है, काफी टेंडर हैं, यानी कमजोर और नाजुक होते हैं। शुरुआत में जब बाल का रूट खुल रहा है, उसमें आप अलग अलग डायरेक्शन से जोर जोर से अलग अलग साइज के डर्मा रोलर्स खुद से यूज करें तो वो क्रॉस सेक्शनिंग से काफी डैमेज बढ़ता है। तो हम लोग उसको सेल्फ केयर जो इस तरह के ट्रीटमेंट्स करना चाहते हैं उसको बिल्कुल प्रमोट नहीं करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। उसके बदले डॉक्टर्स जो इन क्लिनिक इस तरह की नीडलिंग, माइक्रो नीडलिंग करके ट्रीटमेंट आता है, तो इस तरह के डिवाइस से प्रॉपर छोटे छोटे एरिया में नीडलिंग करते हैं। तो सादी भाषा में हम कहें तो जैसे अगर फार्मिंग खेत है, उसको पहले हमें जोतना है या उसको रेडी करना है ताकि फसल अच्छी है। तो इसी तरह स्कैल्प में हमको पहले स्कैल्प हेल्दी करना है, उसी में अच्छे रूट्स उग पाएंगे। तो ये माइक्रो नीडलिंग करके ट्रीटमेंट हुआ। दूसरा होता है पीआरपी का ट्रीटमेंट। पीआरपी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि हम ऐसे आपके बालों में जो ब्लड है आपका, उसमें से एक प्रोसेस करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाते हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में होते हैं, जिनको धीरे धीरे कुछ कुछ इंटरवल्स पे बालों में किया जाता है, स्कैल्प की जड़ों में। तो हमको बेस्ट रिजल्ट आता है, क्योंकि हमारा पूरा ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज हो गया है। तो हम गोली खाने से या सीरम लगाने से रिजल्ट पाएंगे 2 से 3 महीने में, वो हमें 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर दिखने लगेगा। कुछ होता है शुरुआती तौर पे आपको ग्रोथ नहीं आता है, लेकिन आपके प्रेजेंट बाल जो हैं वो थिक होते हैं, यानी कि आपका वॉल्यूम, आपका कवरेज इंप्रूव होता है। तो आपको जो स्कैल्प दिखता था अंदर से वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग बाल हैं उन्हीं को थिक करना या उनको ग्रो करना इजी है, जबकि नए रूट्स उगाने में थोड़ा समय लगता है। तो एक बार हेयर फॉल कंट्रोल हो गया और ग्रोथ के लिए जो हम प्रोसीजर्स कर रहे हैं उसमें पीआरपी है, माइक्रो नीडलिंग है, फिर मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी में इस तरह के एडवांस सेल और ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह जैसे बायोटिन है या और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनका कॉन्सेंट्रेटेड मिक्सचर है, जिसको कि हम सही मात्रा में और सही डोज में अगेन स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं। ओके। आजकल लेटेस्ट जो चला है वो है जीएफसी थेरेपी, यानी ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। तो जो आपका ब्लड है उसको हमने विथड्रॉ किया, उस ब्लड के साथ कुछ एडवांस्ड रिसर्च, वेल रिसर्च प्रोडक्ट को ग्रोथ फैक्टर के साथ इंक्यूबेट करते हैं, यानी उसको हम लैब में तैयार करते हैं। फिर जो दवा बनती है उसे जब हम पीरियोडिक इंटरवल पे, जनरली 3 से 5 हफ्ते के बीच रिपीटेड सेशंस होते हैं, 5 से 6 सेशन में काफी अच्छा रिजल्ट हमें दिखने लगता है। तो वो जीएफसी थेरेपी और कई बार हम माइक्रो नीडलिंग को कम
करते हैं कुछ पेशेंट्स में। जैसे कुछ लेडीज हैं जिनको काफी हद तक हल्कापन आ गया, यहाँ से मांग चौड़ी हो रही है या काफी बाल कम हो गए हैं, तो उनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, तो हम 2 से ज्यादा प्रोसीजर साथ में भी एडवाइस करते हैं। तो ये हुए हमारे जनरल इन क्लिनिक प्रोसीजर। आप घर पे क्या कर सकते हैं, तो घर पे आप लाइट ऑयल मसाज शैम्पू से पहले करते हैं, वो एक हेल्प करता है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा लेने के लिए सनलाइट में आप बैठते हैं, या विटामिन डी सप्लीमेंट्स आपके डॉक्टर ने बताए होंगे वो प्रॉपर लेते हैं, तो वो एक आप घर पे चीजें कर सकते हैं। एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट आता है जो कि प्रोसीजर नहीं है लेकिन लेजर थेरेपी, तो उसमें क्या होता है, जिस डॉक्टर के पास इस तरह का लेजर मशीन रहता है जो बालों में पीरियोडिकली यानी सप्ताह में 2 बार 3 बार उसका सेशन लेने से हमारे जो वीक वो स्ट्रेंथन होते हैं, यानी कि वो मजबूत होते हैं। नेचुरली अगर आपका रूट स्ट्रेंथन है, आपका रूट मजबूत है, तो फिर हम उसमें से बाल जो निकलेगा वो काफी हेल्दी निकलेगा, वो प्रॉपर ग्रोइंग फेज में काफी तक रहेगा। जो हमारा जो टेलोजन फेज यानी जो फॉलिंग फेज है वो कट डाउन हो जाएगा, तो जो हमारे गिरने का रेट है, जो बाल जिस स्पीड से गिरते हैं वो कम हो जाएगा। हमारे प्रोसीजर की हेल्प से काफी हद तक आज के एडवांस ट्रीटमेंट्स में हेयर एक्सपर्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के साथ काफी प्रॉपर हेयर ग्रोथ भी वापस ला सकते हैं। यानी इवन यहाँ जो पूरा गैप होता है नेल्स में जो साइड्स का, वो भी हम ग्रो कर सकते हैं। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट वो 3 से 6 महीने में दिखता है। ओके ओके, वाह मैम, आपने बहुत अच्छे से समझाया, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आया एक्चुअली में। आई थिंक हमारे ऑडियंस को भी समझ में आया होगा। सो डॉक्टर, लाइक आपने कहा न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सो डॉक्टर और आजकल एक वर्ड भी है न्यूट्रास्यूटिकल। सो डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये न्यूट्रास्यूटिकल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या हर्बल प्रोडक्ट वगैरह का हेयर लॉस के मैनेजमेंट में कुछ लाइक हेल्प हो सकता है? लाइक ये हेल्प करता है बालों को ग्रो करने में, या फिर मतलब लाइक कि क्या चीजें हैं, क्या है ये एग्जैक्टली? देखिए, न्यूट्रास्यूटिकल्स यानी हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो जो कॉमनली अवेलेबल सप्लीमेंट्स हैं, जो जिसमें मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको मॉडिफाई करके उसको हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट और डोज के हिसाब से जब कंबाइन किया जाता है कुछ एक्टिव मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वो न्यूट्रास्यूटिकल कहलाता है। यानी कि दवाइयाँ और सिंपल सप्लीमेंट या सिंपल डाइट के बीच का होता है। तो डेफिनेटली वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है बालों की हेल्थ के लिए, क्योंकि नॉर्मली हम जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन है, फैट है, प्रोटीन है, आजकल प्रोटीन बहुत लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई लेना चाहिए, तो वो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हम काफी हद तक अपनी डाइट से पा सकते हैं। या फिर जैसे हमारे जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं या फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो भी हमको डाइट से मिल जाते हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि कम मात्रा में चाहिए लेकिन वो ज़रूरी है हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारी शैफ्ट की स्ट्रेंथ के लिए, तो वो केराटिन प्रोटीन है, तो जो हम नॉर्मली नहीं ले पाते हैं डाइट में, या डाइट से हमको पूरक मात्रा में सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं मिलता, वो सारा हम ये न्यूट्रास्यूटिकल्स या प्रिस्क्राइब्ड सप्लीमेंट जो हेयर स्पेशल जो मेडिसिन सप्लीमेंट के तौर पे या न्यूट्रास्यूटिकल के फॉर्म पे बालों के लिए आती हैं, उसमें कॉमनली आप बायोटिन देखेंगे। आजकल एडवांस्ड में आप बोराज ऑयल करके आता है वो देखेंगे, या फिर सीड मिक्सचर के जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, वो सब काफी हद तक फायदा करते हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों का फ़ायदा बहुत है। सो डॉक्टर, आजकल ना ये नेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे ये सारे मतलब लाइक बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स हैं जो लोग कहते ले लो, और आजकल लोग बिना लाइक खाते रहते बिना मतलब जाने कि इसको कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। तो जो हमारा आरडी है, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंस है जो न्यूट्रिएंट का, क्या उसका कोई रोल होता है या होता है हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में, या हम ऐसे ही ब्लाइंडली खाते रह सकते हैं, या फिर अपने आप को सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं? नहीं, देखिए, कुछ हद तक मे बी शुरुआत में अगर आप अपने सेल्फ रिसर्च से कुछ सप्लीमेंट्स लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, 2 से 4 हफ्ते 6 हफ्ते आपने लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी मार्केट में या सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन आपको
प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिसमें हर एक में बायोटिन है, कोलेजन है, आप ये भी ले रहे हैं, आप रोजमेरी ऑयल भी लगा रहे हैं, आप गमीज भी खा रहे हैं, तो उतना सब साथ में नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी डेफिनेटली एज पर योर आरडीए रिक्वायरमेंट, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस. हमारा नॉर्मल कितनी उसकी मात्रा जरूरी है शरीर में, उसी के हिसाब से डिसाइड होना चाहिए कि आपके सप्लीमेंट्स कैसे लिए जाएंगे. तो कई बार हम साइक्लिकल फॉर्म में भी देते हैं, यानी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं वो अभी दिए, कुछ समय बाद उनको रिपीट किया, उनको कंटिन्यूअस नहीं ले सकते हम, इसलिए उनको साइक्लिकल फॉर्म में आपके हेयर एक्सपर्ट्स जो हैं वो एडवाइस करेंगे. तो इसी तरह से जैसे बायोटिन है या आपने हेयर सप्लीमेंट्स नॉर्मली जो विटामिन्स हैं आपके फ्रेंड्स ले रहे हैं, यंग एज में जो ले सकते हैं, वो ओल्ड एज में कुछ और दवाइयाँ आपकी चल रही हैं जैसे थायराइड की कॉमनली चलती है, उन सब कुछ चीज़ों के साथ हम नहीं ले सकते. सिमिलरली कुछ दवाइयाँ आपके ब्लड टेस्ट के पहले या आपके कुछ और एंटीबायोटिक कोर्स से पहले और बाद में बंद करनी होती है. तो ये सारा एडवाइस बहुत ज़रूरी है. गमीज में आजकल शुगर कंटेंट बहुत है, आजकल लोग वो च्यूएबल गमीज के लिए प्रचलित है, तो उसमें शुगर कंटेंट अननेसेसरी जिसकी जरूरत नहीं है वो भी आप खा रहे हैं. तो इसलिए अगर मतलब प्रॉपर गाइडेंस से आप करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, और उसके जो संभावित या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं जो लंबे टाइम में हमें मालूम पड़ेंगे, जैसे आप बहुत सारा आयरन खा लें, बहुत सारा B12 खा लें, तो उससे आपका नॉर्मल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होगा, आपके और बोन हेल्थ या और हेल्थ को डिस्टर्बेंस आएगा. तो वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए जो भी न्यूट्रिशनल्स हैं, जो भी सप्लीमेंट्स हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन के तौर पे या गाइडेंस के हिसाब से देते तो आपको उसका सबसे बेहतर फायदा मिलेगा. ओके, तो ये सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हमें अंडर डॉक्टर सुपरविजन लेना चाहिए, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं कि हमारा डेली रिक्वायरमेंट क्या है. ब्लाइंडली लेने से बेहतर तो यही है. तो डॉक्टर, लाइक जैसे आपने हमें बताया आज कि हेयर लॉस क्या होता है, हेयर लॉस के कॉजेस क्या होते हैं, और इतनी सारी जानकारी हमें आज जानने को मिली. तो डॉक्टर, एक दूसरा प्रॉब्लम है, वो है डैंड्रफ, जो कॉमन है हम सबके बीच में, भले बड़े हो या छोटे. तो क्या डैंड्रफ या रूसी के कारण हेयर फॉल हो सकता है? बहुत कॉमन है डैंड्रफ. डैंड्रफ के कारण, रूसी के कारण हेयर फॉल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो डैंड्रफ है वो किस प्रकार का है. कई बार वो सीजनल होता है, किसी में हमेशा रहता है. यंग एज में जब आपके ऑयल की सिक्रीशन, यानी जो हमारे सेबेसियस ग्लैंड्स हैं, जो हमारे चिकनाई की ग्रंथियां स्कैल्प में होती हैं, उनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो वो काफी फंगस या जो नॉर्मल हमारे स्कैल्प में या स्किन में जो फंगस और बैक्टीरिया नॉर्मली पाए जाते हैं वो अपना रूप बदल देते हैं, तो वो एक पैथोजेनिक फॉर्म में आ जाती हैं, जिसकी वजह से फ्लेकिंग ज्यादा हो रही है, साथ में सिर में खुजली है, कई बार लाल लाल चकत्ते हो जा रहे हैं, या आप खुजाओ तो नाखून में आ रहा है या कपड़ों पे आ रहा है. तो ये सारा सादा डैंड्रफ या सिर्फ ड्राई स्कैल्प के लक्षण नहीं है, ये एडिशनल फंगल इन्फेक्शन के लक्षण है. सिमिलरली इससे और एडवांस्ड अगर हम सीरियस इशू पे जाएं, स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन या अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स फंगस के प्रति बहुत ज्यादा होता है, तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस नाम का रोग या नाम का कंडीशन डायग्नोस होता है. तो वो आपके डॉक्टर किस लेवल का आपको डैंड्रफ है, किस प्रकार का है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है या सिर्फ मेंटेनेंस की जरूरत है, वो समझना बहुत जरूरी है. क्योंकि फिर वो आपको लंबे समय के लिए या हर सीजन के हिसाब से एक हेयर केयर एडवाइस कर देंगे कि भाई आप सर्दियों में ये शैम्पू और इस तरह का मेंटेन करिए, या आपको ये ह्यूमिड वेदर में, बारिशों के मौसम में जब डैंड्रफ ज्यादा आता है स्टिकी टाइप का, तो उसके लिए आपको क्या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट्स या स्टे ऑन लोशंस हैं, कुछ तरह के ऑयल्स हैं या कुछ टैबलेट है, कितने समय लेनी है, वो गाइडेंस मिलता है. दूसरा, एक सेल्फ केयर के लिए एक ये बहुत बढ़िया हमारे पास ऐसा स्ट्रिप आता है. सो दिस स्ट्रिप इज होम रेमेडी, मतलब होम रेमेडी तो नहीं कहें, होम केयर टेस्ट है. तो वो आप स्कैल्प पे अपने देख सकते हैं, फिर उसका एक पूरा रीडिंग चार्ट आता है, उसमें आप मैच कर सकते हैं कि आपको किस लेवल का या कितने सीवियर फॉर्म का डैंड्रफ है. जैसे अगर आप देखेंगे इसमें, आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं, माइल्ड से लेके सीवियर तक, तो वो किस तरह का आपका मैचिंग आएगा, उसके लेवल पे आप समझ सकते हैं खुद से कि ये कितना सीरियस है. और
तो ओके। इलाज ज़रूरी है या उसको हम सिर्फ मेंटेन करेंगे या थोड़ा बहुत 1-2 बार का कुछ लोशन लगा के 1 या 2 वीक के टैबलेट से हम कंट्रोल कर पाएँगे। तो डैंड्रफ का इन्फ्लेमेशन फेस पर भी आने लगता है, जैसे दाढ़ी के भाग में है या आईब्रोज के ऊपर है, तो वो काफ़ी कॉमन, लेकिन उसको शुरुआत में ही इनिशियल लेवल पे ही जब हम कंट्रोल कर पाते हैं, तो वो लंबे समय में हमें परेशान नहीं करता। अच्छा, तो जितनी जल्दी हम अपनी डैंड्रफ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उतनी जल्दी आगे हमें प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी, या मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है लूसी को या डैंड्रफ को भी। जितनी वेरी जल्दी हम इंटरेस्टिंग उसको ट्रीटमेंट करेंगे, उतना प्रिवेंशन और मेंटेनेंस हम आराम से कर पाएँगे। पाएँगे। ओके, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर, आपने बहुत अच्छे से समझाया एंड वेरी मतलब लाइक बहुत शानदार। मुझे तो पता भी नहीं था कि हम घर के अंदर भी अपने आप को डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं ज़रूर ये खरीदूँगी। यस, वेरी नहीं, ये इंटरेस्टिंग डॉक्टर। तो बेसिकली तो हम इन क्लिनिक देते हैं, ये बाहर जल्दी से आई डोंट नो अवेलेबल है कि नहीं, बट ओके, डॉक्टर्स ही, आपके हेयर स्पेशलिस्ट ही आपको ऐसा गाइडेंस देंगे, तो वो ही ये ओके। किट आपको प्रोवाइड करते हैं कि आप कुछ-कुछ समय पे या सीज़न के हिसाब से, आप जैसे मानसून में ये टेस्ट करिए, फिर विंटर में करिए। तो जो क्रॉनिक डैंड्रफ है, उनके लिए हम प्रॉपर एक इंडिविजुअलाइज़्ड परफेक्ट मेंटेनेंस प्लान तैयार कर सकते हैं। वाह! 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 बहुत ही शानदार डॉक्टर। सो डॉक्टर, जैसे कि आपने लाइफ़स्टाइल के बारे में हमें बताया कि लाइफ़स्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो एक लाइफ़स्टाइल में आपने थोड़ा ये स्ट्रेस के बारे में भी हमें बताया कि स्ट्रेस भी हेयर लॉस को मतलब कॉज़ कर सकता है। तो आजकल तो स्ट्रेस हम सबकी लाइफ़ में है, स्ट्रेस तो ऐसा है कि हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो प्लीज़ आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो कि स्ट्रेस का क्या रोल है हेयर लॉस में, और हम क्या-क्या कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए? ओके। आम व्यक्ति स्ट्रेस समझता है कि दिमाग में बहुत टेंशन है, बहुत थॉट्स हैं, या उसका आगे एक्स्ट्रापोलेशन, यानी उसका और आगे ये लंबे समय तक चले तो नींद पे असर होता है। तो वो नींद की वजह से जो हमारे बॉडी में हार्मोनल लेवल्स चेंज होते हैं, कॉर्टिसोल सिक्रीशन ज़्यादा होता है, वो सब की वजह से हमारे शरीर पे, स्किन पे, हेल्थ पर और बालों पर, सब पर असर करता है। दूसरा, एज डॉक्टर्स या एज हेयर स्पेशलिस्ट हम समझते हैं एक सेल्यूलर लेवल का स्ट्रेस, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहलाता है, यानी कि अंदर जो जड़ें हैं उनका ग्रोथ पैटर्न पर जो असर हो रहा है, जो सेल डैमेज हो रहा है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो उसको भी, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हेयर चेंजेस, ड्राई हो जाना, बाल बहुत फ्रिजी हो जाना, मैनेजेबल नहीं रह रहे हैं, या फिर ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक जगह अटक गया है, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से पाए जाते हैं। तो नॉर्मल लाइफस्टाइल मेजर्स आप करेंगे कि हेयर स्ट्रेस कम हो, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं, या आपका रेगुलर एक्सरसाइजेज है फिजिकल हेल्थ के लिए, तो आपका नेचुरली जो अच्छे पॉजिटिव हार्मोन सिक्रीट होंगे, तो वो आपको हेयर को, स्किन को, सबको वो ग्लो और शाइन जो चाहिए वो जरूर मिलेगा। प्लस साथ में स्ट्रेस कम होता है टाइमली खाने से, क्योंकि अगर खाया नहीं है प्रॉपर टाइम पे, तो वो एक बॉडी उसको एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के तौर पर परसीव करती है, यानी वो ऐसा सिग्नल्स आते हैं बॉडी को कि ये एक स्ट्रेस सिचुएशन है। तो उसमें फिर से वही साइकिल रिपीट होती है कि आपका हार्मोनल लेवल चेंज हुआ, आपका कोर्टिसोल बढ़ गया, तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं। ओके, सो मतलब स्ट्रेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है हमारे खाने के साथ-साथ, तो स्ट्रेस को भी मैनेज करना इम्पोर्टेंट है, ताकि बाकी सारी हेल्थ के साथ-साथ हेयर फॉल भी कॉज़ कर सकता है स्ट्रेस, तो स्ट्रेस को मैनेज करना ज़रूरी है। सो डॉक्टर, जब हम स्ट्रेस में भी होते हैं और हम आजकल बहुत लोग घर से भी काम कर रहे हैं, तो हमारी मम्मियाँ जो हमें बहुत टाइम से बोलती आ रही कि तेल लगा लो, मसाज कर लो, स्ट्रेस चला जाएगा, पर जितना तेल लगाओगे बाल उतने ही घने, लंबे और शानदार होंगे। सो डॉक्टर, आपको क्या लगता है कि तेल लगाने का कोई फ़ायदा है या कोई नुकसान है? मतलब व्हाट आपको क्या लगता है, ये क्या इसके पीछे फैक्ट क्या है? ओके, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लाए हैं आप मोना जी, बिकॉज ऑयलिंग, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड आजकल, क्योंकि ऑनलाइन आप देखो तो रोजमेरी ऑयल है, आदिवासी ऑयल है, अनियन सीड ऑयल है, तो बहुत सारे तरह के हेयर ऑयल्स प्रमोट हो रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें तो सब मना कर रहे हैं कि ऑयल्स नहीं लगाना है, नहीं लगाना है।
सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग द पॉपुलेशन। Yeah. आम लोगों में बहुत कंफ्यूजन, वो जिसको फॉलो कर रहे हैं उसने जो बोला वो ट्राई करते हैं, तो वो सॉल्यूशन नहीं है। तो सही अप्रोच क्या है कि आपके स्कैल्प के स्किन के हिसाब से, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ऑयलिंग इम्पोर्टेंट है। ऑयलिंग डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, वो हम एक प्री बाथ या प्री हेयर वॉश कंडीशनर की तरह देखते हैं एज हेयर स्पेशलिस्ट। ऑयलिंग से हमारा जो हेयर शाफ्ट है उस पे अच्छा स्ट्रेंथनिंग आता है, जो केराटिन फॉर्म हो रहा है, जो फ्रिजीनेस आ रहा है वो थोड़ा सा स्मूदन आउट होता है। बालों में जब आप स्कैल्प में उसको हल्का लाइट मसाज करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन और हेयर ग्रोथ में फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपका डैंड्रफ ज्यादा है, आपको बालों में वो बारीक बारीक फुंसियां या इचिंग हो रहा है, तो उस समय आप ऑयलिंग नहीं कर सकते। दूसरा सबसे कॉमनेस्ट क्या है प्रैक्टिस, कि आप शैम्पू के पहले ऑयलिंग करेंगे, और शैम्पू पिछला शैम्पू आपने किया होगा मे बी 5 दिन पहले, 6 दिन पहले या 1 वीकली जो लोग करते हैं, तो उनमें क्या होता है जब स्कैल्प में गंदगी या डर्ट या ग्रीस या ऑयल और साथ में ये पोल्यूशन की वजह से जो भी लेयर जमता है उसके ऊपर अगर आप ऑयल मसाज ज्यादा कर रहे हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि वो सारा डर्ट और वो सारी इम्प्योरिटीज आपके रूट में जा रही है। तो ऑयलिंग कब करना है कि जब आपका स्कैल्प रीजनेबली 1-2 दिन पहले आपने शैम्पू किया है, बहुत ज्यादा डर्ट नहीं है, तो दैट इज अ गुड टाइम टू ऑयल। ओके। तो उसके बाद फिर आप 1-2-3 घंटे रखेंगे, या जिनको सूट होता है, जिनके ज्यादा ड्राई स्कैल्प है, ड्राई बाल है, तो आप ओवरनाइट रखिए और फिर नेक्स्ट डे आप शैम्पू करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो ऑयलिंग किस प्रकार का है, कब करना चाहिए, वो सभी ध्यान में रखते हुए अगर ऑयलिंग की जाए तो वो हेल्प करती है। ओके, सो इससे बेटर है कि हमें डॉक्टर से ही मिलना चाहिए और उन्हीं को पूछना चाहिए कि हमारे बालों में ऑयल लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मतलब मेरा बाल एक्चुअली में चाहता है कि नहीं चाहता है। वन टाइम कंसल्टेशन, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक बार आप उनके पास जाके अपने सारे हेयर कंसर्न सिंगल सेशन में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका अगला कुछ साल काफी अच्छे से हेयर केयर में निकल जाएंगे, अनलेस कोई मेजर चेंजेस दिखते हैं हेयर फॉल के या हेयर लॉस के। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर। सो डॉक्टर, आप क्या अब हमें ये बता सकते हैं कि कुछ ऐसे मिथ्स और फैक्ट जो आपके रोजाना जो भी आपके पेशेंट आते हैं जो आपको पूछते हैं, मतलब लाइक जिनको जिनको लगता है वो फैक्ट है लेकिन वो एक्चुअली में मिथ होता है, तो कि आज क्या आप हमें थोड़ा बस्ट कर सकते हैं थोड़े मिथ और फैक्ट्स को रिलेटेड टू हमारे हेयर हेल्थ और हेयर लॉस के लिए? श्योर। बहुत कॉमन मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो लोग नहीं जानते हैं, और काफ़ी अनऑथेंटिक सोर्सेज पर वो रिलाई कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो पहले मिथ की बातें करेंगे। इसमें सबसे कॉमनली हमारे पास क्या आता है कि अगर हम जैसे अनियन जूस लगा लिया, लेमन लगा लिया डैंड्रफ के लिए, तो उससे मेरा डैंड्रफ चला जाएगा। नहीं, वो मिथ है। उससे बेटर है कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज और प्रॉपर एंटी डैंड्रफ लोशंस आते हैं या मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन से, उसको प्रॉपर फॉलो करें और एक हेयर केयर रिलीजियसली फॉलो करें। दूसरा मिथ है कॉमनली जो पाया जाता है वो है जब 1-2 बाल सफेद दिखने लगते हैं, ग्रे हेयर, तो आप उसको प्लक कर देंगे तो हमारे और ग्रे नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेइंग जो है वो एक जेनेटिक पैटर्न है, और जो आपका न्यूट्रिशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कितना पोल्यूशन है, कितना स्ट्रेस है, उन सब पे, प्लस आपका हेरिडिटरी, आपके पेरेंट्स को कितना एज में ग्रेइंग हुआ था उस पर भी आपका ग्रेइंग डिपेंड करता है। तो 1-2 बाल निकाल देने से और ग्रे नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। वो आसपास रूट्स देख नहीं सकते कि मेरे आसपास ग्रे है या ब्लैक है। एवरी रूट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम। तो वो एक कॉमन मिथ है। फिर हम देखते हैं कॉमनली के ऑयली के बाद मेरा हेयर या मेरा स्कैल्प बहुत ड्राई हो जाता है। ऐसा नहीं होता है, इट इज ऑल्सो मिथ। लेकिन उसके बाद जो निकालने के लिए आप ओवर शैम्पूइंग कर रहे हैं, आप 2-3 बार शैम्पू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा झाग बन रहा है, तो वो जो फोमिंग केमिकल्स हैं उनकी वजह से आपका हेयर डैमेज होता है या ड्राई होता है। सो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द से, लेकिन जो आफ्टर केयर है उस पे बहुत जरूरी है कि आप ध्यान दें और प्रॉपर प्रोपोर्शनेट अमाउंट में ही शैम्पू यूज करें, ज्यादा शैम्पू यूज ना करें। ये कॉमन मिथ्स हैं। मे बी हमारी ऑडियंस भी बाद में कुछ कॉमन क्वेरीज और मिथ पूछ सकते हैं। अभी हम फैक्ट्स की तरफ चलते हैं।
तो फैक्ट्स में क्या है, सबसे पहला मैं जो फैक्ट आपको बताऊंगी कि हीट ट्रीटमेंट्स आजकल जो बहुत जल्दी में है, स्ट्रेटनिंग कर लिया, स्ट्रेटनर्स यूज किए, ब्लो ड्रायर्स यूज किए, तो वो सबसे हेयर डैमेज होता है, पीरियड। वो आप चाहे हफ्ते में 2 बार यूज कर रहे हैं तो ज्यादा डैमेज होगा, लंबे टाइम में अगर कभी कभार यूज कर रहे हैं लेकिन हीट प्रोटेक्टेंट्स यूज करते हैं तो रिलेटिवली हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसका डैमेज कम कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। तो हीट ट्रीटमेंट से बाल डैमेज होते हैं, ये फैक्ट है, तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा एक फैक्ट आता है कि अगर हम बाल कटिंग ट्रिमिंग करते रहते हैं तो हमारा ग्रोथ अच्छा आएगा, ऐसा नहीं होता है। कटिंग का या ट्रिमिंग का, रेगुलर ट्रिमिंग का एक ही बेनिफिट है कि जो हमारे डैमेज स्ट्रैंड्स हैं उन पे सारा हमारे मतलब स्कैल्प का न्यूट्रिशन जाके अकुमुलेट हो और वो रिपेयर ना हो पाए, तो उससे बेटर है कि हम उसको ट्रिम कर दें। सारे डैमेज हेयर जो स्ट्रेटेंड हेयर हैं, नीचे के रह गए हैं या कर्ल्ड हेयर हैं या स्प्लिट एंड्स हैं, तो उन सबको अगर आप हटा देते हैं, ट्रिम करते हैं, तो आपका ओवरऑल बाकी का स्कैल्प का हेयर इम्प्रूव होगा, बिकॉज वो न्यूट्रिशन प्रॉपर जगह पर जा रहा है। वो लास्ट के स्ट्रैंड्स तक जाके बेनिफिट नहीं देगा तो कोई फायदा नहीं है। तो कटिंग या ट्रिमिंग ऑफ हेयर डायरेक्टली हेयर ग्रोथ नहीं करता है। ओके, दूसरा ये जो हम देखेंगे जो एक फैक्ट है वो है गीले बाल नहीं बनाने चाहिए क्योंकि ओके उससे डैमेज होता है। तो हमेशा टॉवल ड्राइड या लाइट हल्के डैम्प हेयर हो उन्हीं को कोम करिए, डोंट कोम वेट हेयर। गीले बाल बनाने से उसका पूरा जो केराटिन स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता है, वो और बाद में फ्रिजी होते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो हेयर शाफ्ट या हेयर स्ट्रैंड हम कहते हैं वो वीक होता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर। मतलब मुझे मुझे तो यही लगता था कि बाल कटाने से लंबे होते हैं जो कि नहीं है, ये ऐसे ये मतलब कंप्लीटली ये मिथ है जो हम सब में, आई थिंक सो हमारी मम्मियाँ भी यही बोलती है, बाल कटा लो लंबे हो जाएंगे अगर लंबे नहीं हो रहे तो। क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर, आई थिंक सो हमारा डिस्कशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी ये सेशन बहुत बेनिफिशियल लगा होगा। सो डॉक्टर, क्या मैं एक दो लाइव क्वेश्चंस ले सकती हूँ प्लीज? हाँ बिल्कुल। डॉक्टर, मैं भी अहमदाबाद गुजरात से हूँ और मैं 35 इयर्स का हूँ और मुझे एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया है लेकिन मेरे बाल वापस नहीं आ रहे हैं, तो क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट करा लूँ और आपके अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके, 35 इयर्स इज अ गुड एज, हम हेयर ट्रांसप्लांट कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि अभी आपके कितने बाल बचे हैं ऊपर की साइड, यानी कि जो हार्मोन डिपेंडेंट बाल हैं, प्लस जो नॉन हार्मोन डिपेंडेंट बाल हैं जहाँ से हम बाल लेकर उसको यहाँ प्रत्यारोपित यानी ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जो पीछे के बाल कितने हमारे पास डोनर एरिया है और सामने हमको कितने एरिया को कवर करना है, कितना रेसिपिएंट एरिया है, उस पे डिपेंड करेगा कि हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल होगा। और आज की तारीख में जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे वो आगे 10-15 साल तक आपको प्रॉपर ग्रोथ दे, प्रॉपर कवरेज दे, उसका एक प्लानिंग अभी से शुरू करना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, जो आपके अभी यहाँ ऊपर के बाल होंगे उनके सपोर्ट के लिए वो चले जाएं, आगे जाके फिर से आपको उस जगह में ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े, तो उसके लिए हमें अभी से उन बालों को भी बचाना होगा। तो पूरा एक कॉम्बिनेशन अप्रोच रहता है। ट्रांसप्लांट हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ट्रांसप्लांट सही समय पे किया जाए, सही बालों एरिया के लिए किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम ट्रांसप्लांट, हमारे जो हेयर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है, उनका बाद में मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स भी चलते हैं, क्योंकि जो बाल हैं उनको एक सपोर्ट कुछ समय तक आते हैं, इट्स नॉट अ लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, लेकिन कुछ समय तक आप दें तो आप उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की बात है तो वो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए, मेरे क्लिनिक के अपॉइंटमेंट्स और अपोलो के अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। ओके, थैंक यू मैम, क्वाइट इंटरेस्टिंग। दूसरा क्वेश्चन है हमारे, डॉक्टर मैं 52 इयर्स की हूँ और मुझे मेनोपॉज आ रहा है। किसी ने मुझे बोला कि मैं अगर हार्मोनल थेरेपी और पीआरपी दोनों करा लूंगी तो मेरे बाल जो अब गिर रहे हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे और नए भी वापस आ जाएंगे, तो क्या ये मिथ है या फैक्ट है?
ओके, नाइस। मिथ और फैक्ट का हमें एक और क्वेश्चन मिला है। देखिए 52 इयर्स पे हॉर्मोन्स अपना काम कर रहे हैं। पोस्ट मेनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल एज है तो उसमें हमारे जो हॉर्मोन्स हैं उनका नॉर्मल टेंडेंसी रहता है कि जड़ें हैं वो पतली हो रही हैं, बाल हल्के हो रहे हैं, स्पेशली आगे से थिनिंग हो रहा है। तो अगर उस वक्त हम पीआरपी ट्रीटमेंट का या हार्मोनल थेरेपी ओरल टैबलेट्स के फॉर्म में होती है उसका सपोर्ट देते हैं तो जो बाल हैं वो रहेंगे और नए ग्रोथ भी आएंगे। लेकिन एकदम पहले जैसे हो जाएंगे तो वो मिथ है। आप बिल्कुल 20 साल या आपके 25 साल की एज में जो बाल थे वैसा नहीं हो सकता है, लेकिन रीजनेबली सेटिस्फैक्ट्री इम्प्रूवमेंट एंड प्रिवेंशन जो हम हमेशा भूल जाते हैं। भाई तकलीफ हो गई फिर हम ट्रीटमेंट करें, उससे बेहतर है कि जो है उसे हम बचाएं। तो उसके लिए हम अगर उनके पास आते हैं जैसे तो वी विल वर्क ऑन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव अप्रोच जो बहुत जरूरी है कि ताकि वो उसमें कॉस्टिंग भी कम हो जाता है, उसमें एफर्ट भी कम हो जाता है और जो है वो रखने में काफी बेनिफिट रहता है। हमारा कॉन्फिडेंस उस पर डिपेंड करता है। आजकल किसी भी एज में देखें चाहे स्किन केयर कोई नहीं करेगा लेकिन बालों के लिए तो सभी जागरूक हैं। तो फिर वो हेयर केयर किस इतना एफर्ट मांगता है, वो अगर हम पहले से प्रिवेंशन प्लान करेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी। ओके ओके, तो मतलब जब मेनोपॉजल एज में आ रहे हैं उसी वक्त अगर हम अपने हेयर का जो भी लॉस हो रहा है उसका मैनेजमेंट चालू कर दे तो आगे जाके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, या सारे बाल गिरने से बेटर है पहले से ही हम अपना ट्रीटमेंट चालू कर दो। क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर। तो मैं अब बिकॉज हम लोग वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड मैं जल्दी से एक आखिरी क्वेश्चन ले लेती हूँ अपने ऑडियंस से। हेलो डॉक्टर, मेरी बेटी 12 साल की है और उसको बहुत सारे सफ़ेद बाल आ रहे हैं, तो क्या आप ये बाल सफ़ेद होने से रोक सकते हैं और आपके अपॉइंटमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अहमदाबाद गुजरात से हूँ। ओके, देखिए ग्रेइंग के लिए हम बात कर चुके हैं। जो इतनी यंग एज में ग्रेइंग है वो अगर पेरेंट्स में ऐसा नहीं है कि भाई उनके टीनेज समय में या कॉलेज डेज में ग्रेइंग हुआ है जो कि जेनेटिक फैक्टर है, उसको हम रोक नहीं सकते। उसके अलावा जो भी कारण है ग्रेइंग के, जैसे कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम है या स्ट्रेस पैटर्न है, बच्चों में भी कई बार आजकल होता है जैसे स्कूल चेंज किया या पीयर प्रेशर है, ये बहुत तरह तरह के शैम्पू दे वांट टू ट्राई। तो इस तरह के जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर ग्रेइंग है तो एब्सोल्युटली हम उनको रोक सकते हैं। आगे के बाल ग्रे ना हो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। प्लस जो रीसेंट ग्रेइंग है, कुछ पिछले कुछ महीनों में जो ग्रे बाल हुए हैं उनको भी हम वापस रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन साल 2 साल से जो बहुत ज्यादा परमानेंटली वो रूट्स में से मेलेनिन चला गया है तो हम उसको वापस कलर नहीं कर सकते, लेकिन रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी आए आप ऑनलाइन मेरा अपॉइंटमेंट देख लीजिए और मोस्ट वेलकम। ओके, मतलब सफ़ेद बाल को रोक सकते हैं यंग एज में, रिवर्स नहीं पॉसिबल है बट रोक सकते हैं, ज़्यादा ना हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग डॉक्टर। सो डॉक्टर, क्या आप हमें कोई टेक होम मैसेज या कोई और सजेशन देना चाहते हैं मुझे और हमारे व्यूअर्स को आज? Sure, Mona. See, the final take home message from my side, सिर्फ मैं एक ही चीज सब हमेशा अपने पेशेंट्स को भी कहती हूँ, जो आपके लिए सही है वो ही सबके लिए सही हो ऐसा नहीं है। सिमिलरली जो सबके लिए है, जो सब यूज कर रहे हैं वही आपके लिए इफेक्टिव होगा वो जरूरी नहीं है। तो जो भी डिसीजन आप लें उसको प्रॉपर इवेल्युएट करके लें, किसी एक्सपर्ट की सलाह से लें। टेक योर स्किन एंड हेयर हेल्थ सीरियसली, सीक एक्सपर्ट एडवाइस एंड जब भी आप कोई ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो उसके सारा ऑप्शंस और पॉजिटिव पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स समझ के डिसीजन लीजिए, तो उसका रिजल्ट आपको सबसे बेहतरीन मिलेगा। ओके, सो तो आज से हम लोग कुछ भी खुद से ना यूज करें, इट्स बेटर कि हम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिले, डॉक्टर को मिले और अपने हेयर हेल्थ का भी ध्यान रखना चालू करें। So thank you so much, doctor, for sharing so much of information and all your expertise with us today, और सारे questions का जवाब दिया आपने हमारे viewers के लिए, viewers का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। And I think हमारे viewers को ये session बहुत ही helpful लगा होगा, because जिस तरीके से आपने हमें समझाया, I think so अभी
मतलब लाइक मेरे को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी। आई थिंक वैसे ही हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता थी। So thank you so much, Doctor. It was really a delightful session, and thank you so much for your valuable time. Thank you, Mona. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today. And we are signing off for today. We'll see you again. Thank you, Doctor. Have a nice day. Bye bye. Bye.